Hello everyone, I am Jitendra Singh Dahiya. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs and more. Today I have with me Ms. Raghunita Gupta. She has an experience of more than 19 years in corporate. She is the founder and chairperson of the Calligraphy Foundation, which is registered as a non-profit organization, reaching over 8,000 people worldwide. She is working towards the cultural approach towards calligraphy in India and working on mentorship, trainings, workshops, seminars, exhibitions, etc. to support the Indian artist community. Her foundation is working on promoting the Indian calligraphers community, keeping an agenda of creating awareness of Indian scripts such as Devanagari, Marathi, Gurumukhi, Malayalam, Telugu, Kannada, Arabic, Bangla, Orria, etc. They are also working on collaborations with the artists of different mediums to the forefront of advancing the calligraphy in the workplace, at home, and in society to support and empower beginner, intermediate, and advanced calligraphers of India. They are working closely and in connection with government, semi-government sector, NGO, private and corporate, which are strategically aligned to support the mission of the foundation. Today, she will be discussing with us about her life journey. So let us hear from her. Welcome, Raghunita. The platform is open and now over to you. Thank you so much. Hi, thank you, Mr. Daya, for inviting me for this session, and I'm thankful to you for this beautiful read show, which I gone through with many, and I'm happy that you are giving opportunity to many people to talk about their profession, their passion, and other things. I mean, it is really good, and so if we'll talk about me and. I'm Raghunita, and I worked with Canon India for almost 19 years. And after spending so much time in market, I became an artist as a calligrapher, and I'm a calligrapher at the moment. And besides that, I am the chairman of Calligraphy Foundation. And this foundation, which you have already mentioned, I mean, you have already elaborated what we all are doing there, and that is it. I mean, as of now, I can say this. I mean, if you you want something to, so you can see. Sure. And it would be pleasure to have you on our platform. If I talk about you as a person, like how did your past life affected the person who you are and what you wanted to be in your life? Mr. Daya, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो I don't think कि मेरी कोई लाइफ को मुझे ऐसा लगता है कि I feel कि आप जो भी लाइफ में करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग्स होती हैं. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आप कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं. आपकी लाइफ में हर स्टेप आपका लर्निंग होता है. तो आज के टाइम में मैं जो भी कर रही हूँ वो शायद मेरा पुराना प्रोफेशन है जो मेरे को इसमें हेल्प कर रहा है. एंड जहाँ तक हम बात करें, एक होता है ना कि आप कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों से जब आपका एक्सपीरियंस अलग अलग जगह का होता है. तो दिल्ली प्लेस जहाँ पर मैंने वर्क किया, और दिल्ली ने अब आप जानते हैं, अगर आप भी दिल्ली से हैं तो आप जानते होंगे कि दिल्ली बहुत कुछ सिखाता है आपको. तो एवरीथिंग देयर जो मैंने सीखा है वो सब दिल्ली की गलियों में ही सीखा है, और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है. Wonderful. So, like when you were growing, you were a child. You don't have any dreams on that point in time that what you want to do in your life, maybe when you are grown up. सच कहूँ तो मैंने कभी इस एंगल से कभी लाइफ को देखा नहीं, क्योंकि समटाइम्स मतलब आई मीन माय लाइफ वाज नॉट लाइक कि मुझे हर चीज प्लेटर पे लगी हुई मिली हो कि भाई आप ये खा लो, आपको ये मिल जाएगा. At the age of 16 I came in Delhi, and after that when I was studying, साथ साथ ही जॉब करना स्टार्ट कर दिया. एंड जॉब के साथ साथ जो लर्निंग्स मिली वही आगे बढ़ती चली गई, और बढ़ते
हाँ लगता था कई बार हैंड राइटिंग देख करके लोग बोलते थे, मम्मी वगैरह बोलते थे कि तुम्हारा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, तुम्हें कुछ करना चाहिए, बट कैलीग्राफी करना चाहिए ये किसी ने नहीं बोला था, क्योंकि ये टर्म हमारे लिए बिल्कुल नया था एक तरीके से। राइट। बट ओवर अ पीरियड व्हेन 2017 में मुझे मौका मिला इस चीज को एक्सप्लोर करने का, मैंने इसको एक्सप्लोर किया। और जो बोलते हैं ना बचपन का सपना जो आप कहने की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट छुपा हुआ था शायद अंदर, जो करते करते शायद 2017 में कहीं ना कहीं बाहर आ गया। तो कह सकती हूँ मैं कि हाँ बचपन से कोई चीज थी जो आगे बढ़कर मेरे साथ में आगे बढ़ी। Wonderful, so amazing. If I talk about your passion, what are the things you are passionate about in your life? अगर मैं पैशनेट की बात करूं मिस्टर दाहिया, तो शायद मैं किसी भी चीज के लिए बोलूं कि मैं इसके लिए पैशनेट नहीं हूं तो शायद गलत होगा। उसका रीजन है, एक होता है ना आपको लाइफ जब भी कुछ देती है तो आपको उसको लेना आना चाहिए कि आप कैसे चीजों को आप कैसे आप रिसीव करते हैं चीजों को अपनी लाइफ में। तो मतलब आई टुक इट एज अ चैलेंज एवरी टाइम। इट इज नॉट दैट कि मेरे को ऐसा लगा कि कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं आया कि हाँ कि अरे ये क्या चीज मिल गई एंड अब इसको कैसे करेंगे। आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड सेल्फ मोटिवेटर होना आपको जरूरी होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी पुश करने वाला नहीं मिलता है, आपको कोई भी पुश नहीं करता है। आपको जब तक आप खुद को पुश नहीं करते हैं, आपको मतलब आपके अंदर एक खुद से एक फोर्स होना चाहिए जिससे आप खुद को फोर्स कर सकें, आप अपने आसपास के लोगों को फोर्स कर सकें कि वो भी कुछ करें। आप मतलब मेनली लेडीज के साथ में होता है कि आप उनको जरूरत होती है कि कोई उनको पुश करे कि वो कुछ करना चाहती हैं लाइफ में। और मतलब यू मस्ट बी सीइंग मेनी पीपल अराउंड यू एज वेल कि उनको एक पुशअप मिलता है और वो अपने अंदर की पावर को समझ जाते हैं कि हाँ वी कैन डू दैट। सो इट इज लाइक दैट। Yeah, definitely I've seen like this in many women, like they are good at everything whatever they do, but they need kind of a spark from outside sometimes. Exactly. So if I talk about that's important. If I talk about your work and experience, you already mentioned, so like how you started, what all you did, and how you started your entrepreneurial journey as well, like how you gone through all this. अगर मैं एंटरप्रेन्योर जर्नी की बात करूंगी तो पहले मैं जब कैनन में थी तो मैंने 14 इयर्स कैनन को एज अ जॉब सर्व किया था। बट उसके बाद में ऑलमोस्ट 5 इयर्स मैंने एज अ फ्रेंचाइजी भी रन किया इसका। बट इन कोरोना टाइम बहुत 19 इयर्स ऑलमोस्ट कैनन को सर्व करते हुए हो गए थे, तो आई थॉट कि चलो अब कुछ ऐसा किया जाए जो खुद को मतलब अपनी सोल के लिए कुछ चाहिए था अब अपने को। Okay, so you were into like product sales kind of a thing? Yes, I was into sales, product sales, and जब मैंने गाजियाबाद में जब हमारा अपना ऑफिस था तो that was a sales and service center of Canon India. So लीडर सिंह के नाम से मेरा अपना कंपनी था एंड उसको फिर मैंने कोरोना टाइम में अपने पैशन के लिए छोड़ा उसको। एंड जब मैं इसमें आई तो इनिशियली जब तक होता ना कि स्टार्टिंग के 6 मंथ कोरोना टाइम में सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे एंड कुछ करने को नहीं था हमारे पास, तो आई टुक इट लाइक कि चलो ठीक है। आई मीन एज आई सेड ना कि मैं लाइफ में किसी भी चीज को ऐसा नहीं लिया कि लेमन मिले तो लेमन का लेमनेड बनाना सीखा उस टाइम पर। सो इट हैपेंड विद द कोरोना थिंग एज वेल कि कोरोना में जब बैठे घर में तो क्या करना है, कैलीग्राफी को थोड़ा आगे बढ़ाया अपने लाइफ में और करते करते आई ओपनड अप अ स्टोर ऑफ कैलीग्राफी प्रोडक्ट्स इनिशियली बिकॉज कैलीग्राफी की अवेयरनेस इंडिया में बहुत कम है। एंड जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो आपको वो स्टेशनरी शॉप पे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, वो प्रोडक्ट्स आपको किसी पर्टिकुलर से गाइडेंस के बाद में बाय करने पड़ते हैं और वो गाइडेंस आपको वही बंदा दे सकता है जो उसके अंदर ऑलरेडी उसने या तो स्टडी किया है उसको या कुछ है। देन आई ओपन अप माई ओन स्टोर ऑफ कैलीग्राफी प्रोडक्ट्स एंड ओवर अ पीरियड अराउंड 1 ईयर आप कह सकते हैं मैंने कुछ इंस्टा लाइव्स, कुछ इंटरव्यूज लोगों के अपने कैलीग्राफी कम्युनिटी के जो भी नामी ग्रामी लोग हैं उन लोगों के इंटरव्यूज लिए। एंड वो जो मेरे लिए एक स्टडी हुई जो उन लोगों के इंटरव्यूज लेना एंड आप हर एक फील्ड को समझते हैं जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या कर रहा है एंड आप और मैं एक ही मतलब आपके लिए भी इतने सारे लोगों से आप मिलते हैं, आपके लिए भी एक लर्निंग रहता होगा हमेशा कि हर एक फील्ड को आपको समझने का मौका मिलता है। तो दैट वाज समथिंग जो मेरे लिए बहुत एक अच्छी लर्निंग रही एंड मेरे को मिला कि इसके ऊपर काम करने के लिए तो बहुत कुछ है। देन आई लेफ्ट माय करियर
मतलब होता ना वापस नहीं गई उसमें। फिर हमने ये फाउंडेशन ओपन किया एंड Right. फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया उसके लिए एंड Wonderful. registration and all and done this all game. Great, great. This is so wonderful. Like this is a kind of new thing, and most people would not be aware of. We would talk about this like further. So now moving on to you again. What is your vision, mission, and goal in life for next maybe 5 to 10 years from now? मिस्टर दहिया, अगर मैं बोलूंगी तो आपको लगेगा कि शायद कि मैं ये क्या बात कर रही हूँ, कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। समटाइम्स ऐसा लगता है कि लाइफ का पता नहीं है आप अगले पल क्या करने वाले हैं। बट यस, नाउ आई हैव डिसाइडेड व्हाटएवर आई विल डू दैट विल बी फॉर द फाउंडेशन. My rest of the life is completely for the foundation now, because there is so much to do with calligraphy. Government, Delhi government भी आज के टाइम में मतलब होता है ना, उन्होंने भी एक हॉबी हब के नाम से उन्होंने पूरा निकाला है, वो कैलीग्राफी को स्पेस दे रहे हैं उसके अंदर। सो आने वाले टाइम में लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटी होगी। कैलीग्राफी इज नॉट समथिंग जो सिर्फ और सिर्फ लिखने तक सीमित है। इट इज रिलेटेड टू डिजाइन, इट इज रिलेटेड टू मतलब इफ आई टॉक अबाउट कि कौन लोग इसको यूज करते हैं, तो आर्किटेक्चर्स जो होते हैं वो इसको यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले इसको यूज करते हैं, देन राइटिंग एंड ऑल, मतलब डिजाइनिंग पार्ट जहाँ पर आता है वहाँ पर कैलीग्राफी का बहुत अच्छा यूज आता है। सो दिस इज इट। Correct. So you are like working full-fledgedly onto it. You want to make it a brand kind of a thing wherein people would be much more aware and would be using it in their life most often. Right. If not regularly, most often. मोस्ट ऑफन तो नहीं बोलूंगी सर, आने वाले टाइम में देयर विल बी प्रोफेशनल्स जो कि फुल टाइम इसको, अभी तक लोग बोलते हैं कि हम इसको हॉबी करते हैं, बट मेरी फाउंडेशन इस चीज को आज के टाइम में बोलना शुरू कर दिया है, जब तक आप इसे हॉबी समझोगे तब तक ये हॉबी रहने वाला है। जिस दिन आप इसको एज अ प्रोफेशन समझना स्टार्ट करोगे, प्रोफेशन तभी बनता है जब आप अपनी हॉबी और प्रोफेशन को अलग रखते हैं। राइट, डेफिनेटली। So if I talk about most important life lessons you have learned from your personal and professional life, what are those? इसके आंसर मेरे पास वैसे काफी सारे हो सकते हैं, बट आई वुड लव टू स्टिक ऑन वन कि आपके खुद के अंदर पैशन होना चाहिए चीजों को करने का। कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ देखना पड़ता है उस साइड में। आप प्रॉब्लम्स की तरफ देखना शुरू करते हो, प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, आप सोल्यूशन की तरफ देखना शुरू करते हो तो सोल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें दोनों चीजों को मतलब बैलेंस बना करके अगर हम चलते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें सॉल्यूशंस अपने आप मिल जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। इट इज जस्ट दैट कि हमारा नजरिया क्या है उस टाइम पर। Correct. Agree with that. Yep. If you want to share more, you can share more also. No, that you will have. No, I mean, इतने लंबे कैरियर के बाद में अगर आप मुझसे इतनी सारी चीजें पूछेंगे, इसलिए मैं कैलीग्राफी तक सीमित रख रही हूँ अपने आप को, क्योंकि नहीं, it's okay. You can share. Yeah, yes. I mean, you can ask if you want to know anything else. I mean, I'm ready to answer. No, anything you like from your learning, you can share any other thing you would like to highlight what you have learned. Point of. I mean, I want to give a message through your channel if people are like. जनरली मैं काफी सारे women ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ एंड मैं लोगों से बात भी करती हूँ, एंड मुझे अच्छा लगता है कुछ सॉल्यूशंस अगर मैं उन लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ, या कुछ कई बार होता है कि काफी लोगों को गाइडेंस सिर्फ इतना चाहिए होता है, क्योंकि कई बार मार्केट में इतना ज्यादा आपको पता नहीं चलता है कि आप कहाँ से क्या चीज सही माने क्या गलत माने। तो आज के टाइम में जो लोग टैक्स सेवी नहीं हैं वो लोग टेक्निकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करें, बिकॉज टाइम के साथ जब आप चल रहे हैं और मतलब होता है ना, हर दिन ट्रेंड चेंज हो रहा है, सो यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ एवरी डे। अपने घर में अपने बुजुर्गों को, अपने घर में अपने आसपास जो आपको दिखता है कि टैक्स सेवी नहीं है, स्टार्ट शेयरिंग समथिंग विद देम, सो दैट कि लोग आने वाले टाइम में, मतलब लोगों के अंदर सबसे बड़ा डर ये होता है कि वो अपनी चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, क्योंकि वो झिझकते हैं कि वो कैसे पूछें किसी से कि हम टेक्निकल चीजें नहीं आ रही है तो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लोग एम्बेरेस फील करते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े फेसबुक पर है तो हम फेसबुक पे नहीं रहना चाहते, बट आई रियली लव दैट पार्ट कि लोगों के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि हम अपने बड़ों को कुछ ऐसा दे रहे हैं जिससे वो अपने आप को बिजी रख सकते हैं। एंड बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो मतलब हमारे आसपास लेडीज को एंड मतलब सभी के लिए है ये सब चीजें वैसे तो, लेकिन
हाँ, स्पेसिफिकली लेडीज के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, जो एंटरप्रेन्योर लेडीज हैं वो अपने आप को टेक्निकली साउंड करें, अदरवाइज कई बार सर्वाइव करना मुश्किल होता है मार्केट में, एंड आप कहीं ना कहीं फिर बैठ जाते हो कि ये मुझसे नहीं होगा। तो डोंट गिव अप ऑन दैट पार्ट, अपने आप को टेक्निकली साउंड करो। आज के टाइम में बहुत ब्लॉग्स मिल जाएंगे, बहुत वेबसाइट्स मिल जाएंगे, यू कैन get it somewhere, anywhere on Google. As an entrepreneur, when you start your journey, like there are so many aspects of a business which you should be aware of. One is finance, one is sales and marketing, one is operations, and one is people management. These, if you divide in four core things, you can divide everything in these four core things. So you should be a well-versed. If you are not perfect in these four, you should be well versed with the terms, requirements, guidelines, regulations a little bit, so that you can manage things well. Right. So this is really important for an entrepreneur, whether male or female, anybody. Yeah. So they should start working on exploring and educating themselves. This is important. Exactly. You rightly pointed out, and this is the need of an art. Exactly. I found it in circles, so that's why I just mentioned it. Right. There was nothing. I mean, I'm just whatever I'm saying that is random. So banking is also one aspect which is really important. Like people don't understand banking as well. Yes, right. That is important. Yeah. So if I talk about calligraphy, I think if we talk about the people in overall perspective, most people are not aware of what exactly calligraphy is. And also, I want to understand why this is restricted towards a specific set of people only. Why this is not getting common to everyone? I generally say it like कि जैसे योगा होता है. So योगा क्या होता है कि वो एक हम लोग मैं चीजों को बहुत ज्यादा बेसिक करके बोलने की कोशिश कर रही हूँ इस चीज को, टर्मिनोलॉजीज ला करके मैं अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती, इसलिए मैं बहुत बेसिक चीजों से आपको एग्जांपल देती हूँ. योगा होता है, योगा के लिए हम बोलते हैं कि योगा इज समथिंग जो करने से होगा. करेक्ट. अदरवाइज वो आप कितना भी टीवी देखते रहो कुछ नहीं होगा उसमें, या आप उसको कितने भी वीडियोस देखते रहो कुछ नहीं होगा. Calligraphy is something, not only calligraphy, any art form. चाहे आप गिटार बनाना सीख रहे हैं, चाहे वो आप कोई भी आप आर्ट फॉर्म सीख रहे हैं, तो आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है. एंड कैलीग्राफी इज समथिंग व्हिच रिक्वायर्स प्रैक्टिस. राइट. टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब कोई भी अगर किसी को अच्छा लगता है देख करके कि लोग बोलते हैं इस चीज को कि यार ये क्या है, आपने सिर्फ एक नाम ही तो लिखा है, या आपने एक डिजाइन तो किया, आपके लिए तो 2 मिनट की बात थी. नहीं, उसके पीछे जो एक प्रिसीजन के लिए जो प्रैक्टिस की गई है, जो उसको अचीव करने के लिए जो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, दैट इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. एंड एक होता है ना कि लिटरली अगेन देन योगा का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, हम योगा की बात डेली करते हैं, लेकिन योगा कितने लोग डेली अपनी लाइफ में ला पाते हैं? इसलिए शायद ये थोड़ा सा एक अलग क्लास में चला जाता है, और लोग कहते हैं कि एलीट क्लास वालों का गेम है क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव अफेयर रहता है, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये एक आर्ट है जिसको कोई भी परस्यू कर सकता है. इनफैक्ट आई फाउंड कि गर्ल्स बहुत अच्छा करती हैं इसको, क्योंकि उनका एक सेंस होता है, एक आर्टिस्टिक सेंस होता है. तो जैसे जैसे आप कैलीग्राफी के अंदर जाते हैं, आप सिर्फ लेटर्स को अच्छा करना नहीं सीखते हैं, आप आर्टिस्टिक सेंस भी सीखते हैं, आप एस्थेटिक्स सीखते हैं, आप कलर कॉम्बिनेशन सीखते हैं, आप डिजाइनिंग सीखते हैं, एज आई मेंशन बिफोर एज वेल कि आप इसको डिजाइनिंग में भी कन्वर्ट करते हैं. सो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स जो इसको बाकी आर्ट से अलग बनाते हैं. एंड आज के टाइम में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, दे डू इट, बट उनको एक छोटे सब्जेक्ट है. जैसे हम लोग हिंदी के साथ में संस्कृत पढ़ते थे अपने कॉलेज टाइम में, तो वो संस्कृत हमारी लाइफ से धीमे धीमे चला गया. तो कैलीग्राफी के साथ में ऐसा ही हुआ कि फाइन आर्ट्स के साथ में हमारे एजुकेशन के साथ में कैलीग्राफी को छोटा सा एक पार्ट दिया गया, जिसमें बेसिकली बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता है. सो नाउ विद आवर फाउंडेशन वी आर ट्राइंग कि लोग इसको और परस्यू करें, प्रॉपर फॉलो करें. एंड मोर ओवर एक होता है ना मिस्टर दहिया, आप भी जानते होंगे हम लोग हिंदी लिखना भूल गए. राइट. एंड शायद बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं हिंदी में ही कोशिश कर रही हूँ बात करने की, बिकॉज आई कैन कम्युनिकेट बेटर इन हिंदी. मुझे लगता है कि मैं अपने जो जज्बात है ना वो हिंदी में ज्यादा ला पाती हूँ, मैं इंग्लिश में वो जज्बात नहीं ला पाती हूँ. सो मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं कुछ एक्सप्लेन करने पे आती हूँ तो आई नीड
टू बी मतलब मेरे को लगता है कि मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँ. नहीं, it's तो okay. हिंदी जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने हिंदी लिखना बंद कर दिया. Right. पंजाब में लोग गुरुमुखी लिखते हैं, लेकिन गुरुमुखी लिखना बंद कर दिया है. लोग टेक्सटिंग पे ज्यादा आ गए हैं, लोग टेक्सटिंग ज्यादा करते हैं. Correct. ओवर अ पीरियड हम अपने कल्चर को खोते जा रहे हैं. हाँ. एंड माई फाउंडेशन इज रियली आस्किंग पीपल कि आप वापस एक बार अंतरदेशीय और पोस्ट कार्ड पे जाके तो देखो. हाँ. आपको उसकी फीलिंग पता चलेगी कि वो आप सालों बाद जब उसको निकाल के देखोगे, आपको एक आंखों में आज भी आंसू आते हैं लोगों के जब अपने अंतरदेशीय और अपने पोस्ट कार्ड निकाल के बैठते हैं तो. सो दिस इज समथिंग विच इज completely handwritten thing and emotion personalization. और साथ साथ अपनी संस्कृति का पार्ट है. हमारे संस्कृति में आज भी कई जगह पर हाथ से लिखे जाने वाले पोथी और जो हम लोग जैसे एक बात करते हैं, आप गंगा जी वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर आपको लिखने वाले लोग मिलते हैं जो हाथ से लिखते हैं और वो पर्टिकुलर आपको बताते हैं कि ये बुक्स कितने सालों तक लिखी जाएंगी. राइट. एंड मेरी एक रिसेंट विजिट थी गुजरात में. वहाँ पर मैं जैन धर्म के लोगों से मिली थी जो लोग वहाँ की जैनिज्म की बुक्स लिखते हैं. Okay. और वो बुक्स लिखते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर बैठ के वो लोग एक कुछ बांस जैसा एक उनके पास पेन होता है, उसको वो हाथ से बनाते हैं. देन वो इंक बनाते हैं प्रॉपर्ली उसकी. फिर वो हैंडमेड पेपर यूज करते हैं जिसके अंदर कोई कीड़ा नहीं लग सकता या कुछ. देन इंक भी उनकी बहुत ऑर्गेनिक होती है जिसको 21 डेज तक बनाया जाता है. एंड लाइफ ऑफ दैट पेपर, इंक एंड प्रोसेस इज 700 years. Can you imagine? Wonderful. And that is we cannot available imagine in this India. with normal paper. Yes. So this is something like बहुत सारे घरों में ये चीज मानी जाती है. इनफैक्ट जैन धर्म का जो मेरे को मतलब जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से कि वो लोग अपनी जो बुक्स लिखते हैं वो उनको लोगों को गिफ्ट भी करते हैं वो बुक्स. एंड दे वांट कि वो बुक्स उनकी लाइफ में उनके जनरेशंस तक वो बुक चले. Right. 700 years. We are talking about 7 or 8 generations actually. This is really इंडिया, ये सब इंडिया की कल्चर है. एंड मतलब हमारी जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है. हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं लेकिन अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं साथ साथ. Right. We are giving importance to Western culture. So it's not that I'm against them, but yes, I want people to like कि वो अपने कल्चर की चीजों को भी उतना इम्पोर्टेंस दें क्योंकि ये लोग जाएंगे नहीं तो आने वाले टाइम में और लोग हमारे जनरेशन के बाद नहीं कर पाएगी इस चीज को. True. And they should like explore our like roots basically. Unless you know your roots, you would not be able to understand where exactly you are going. Right. So this is really. So this is important and in sense of अगर जिनको लगता है जैसे गुरुमुखी लिखने वाले लोग हैं या मैं जैसे देवनागरी, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से ब्लॉग करती हूँ तो मैं देवनागरी पे ज्यादा मेरा फोकस रहता है कि देवनागरी लोग लिखें. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म. Such a beautiful art form. आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रिंटेड है ये सब चीजें. But yes, I want people to do it. Right. And if I talk about like how we can use calligraphy in our routine life, maybe not daily but occasionally also, and how to benefit from it. अगर मैं अगेन हम बात कर रहे हैं इसको एज अ हॉबी की, तो मैंने भी एज अ हॉबी ही स्टार्ट किया था इनिशियली. जब 2017 में मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया मिस्टर इंको कुमार का, तो मैंने भी इसको ऐसे ही स्टार्ट किया था एज अ हॉबी. मैं ऑफिस के साथ साथ मुझे लगता था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, मुझे कुछ सीखना है, तो मैंने जस्ट ऐसे ही सीखना शुरू कर दिया था. बट ओवर अ पीरियड व्हाट आई रियलाइज कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे राइटर्स होते हैं जो लोग डेली कुछ कोट्स लिखते हैं, जिनको डायरी लिखने का शौक होता है. कुछ लोग होते हैं जो मेडिटेशन के लिए काफी चीजें करते हैं, जैसे मंडाला क्रिएशन करते हैं, देन कोई भी आर्ट फॉर्म करते हैं. सो कैलीग्राफी इज सिमिलर टू दैट पार्ट. आज के टाइम में लेडीज बहुत ज्यादा मतलब होता है ना, क्लासेस हम लोगों के जो सर्कल में लोग क्लासेस लेते हैं, तो देयर आर मेनी लेडीज जो कैलीग्राफी को परस्यू करती है एज अ हॉबी. क्योंकि उनको कुछ एक होता है ना, इट इज लाइक, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. देयर इज मतलब एक मेरी फ्रेंड की डॉटर थी, वो एकेडमी में इतना अच्छा नहीं था, उसका एकेडमिक इतना ज्यादा सही नहीं था, तो उसको आर्ट में इंटरेस्ट था, उसने कैलीग्राफी करना स्टार्ट किया. एंड ओवर अ पीरियड
what she realized कि उसको क्लास में प्रेज मिलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि एवरीबॉडी यूज्ड टू, वाह उसका राइटिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी को नहीं पता था वो कैलीग्राफी कर रही है। हाँ, तो कहीं ना कहीं जब आपको एक आदत हो जाती है ना प्रेज लेने की, तो आपका ध्यान फिर हर तरफ जाना शुरू हो जाता है कि अरे मुझे इसमें क्यों नहीं प्रेज मिल रही है। तो शी वाज जस्ट 11-12 years kid and over a period उसका एकेडमिक भी अच्छा हो गया, क्योंकि उसको प्रेज मिलने लगा तो उसने बाकी चीजों की तरफ भी प्रेज लेना स्टार्ट कर दिया, एंड ध्यान अपनी एकेडमी पे जाने लगा, अपनी पढ़ाई पर, कि भाई चलो मैं पढ़ाई पर भी ध्यान देती हूँ। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को एक होता है ना अप्रिसिएशन की एक आदत हो जाती है एक ओवर अ पीरियड। तो आप कुछ भी अगर अलग करते हैं तो आपको वो अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। Yes, definitely. Right. So it is like that. मतलब I mean I take it like that only. Right. This is you can start this as an hobby, then later on maybe gradually you can take it as a professionally as you did. Yeah. There are people. I mean in India it is not that कि ये बिल्कुल hidden है. लोग करते हैं, बहुत करते हैं. But अब मैं चाहती हूँ कि और भी लोग करें. Right. Yep. So if I talk about you as a person, are you an introvert or an extrovert while facing your audience? What are the pluses and minuses of the same? Okay. I'm not at all an introvert person. I'm an extrovert, and facing audience is not the thing जो मेरे को problem होता है. But हाँ, मेरे साथ होता है कि अगर आप मुझे शायद चौक और बोर्ड पकड़ा देंगे तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा बोल पाऊंगी. Okay. Instead of आप मुझे पोडियम पे खड़ा कर दें. Right. So पोडियम is something जो थोड़ा सा मेरे लिए ज़्यादा hesitant रहता है. But yes, I can. Well, I'm not at all hesitant and like पोडियम थोड़ा सा डराता है बस मुझे. Right. And if you want to, like, if you see yourself as in like when you were young or when you were growing, like how did you transform yourself then from there to now? Transform. I belong to Aligarh, a place जहाँ पर मेरे ख्याल से जब मैं in 2000 when I came in Delhi, तब तक मैंने बस में ट्रैवल भी नहीं किया था ढंग से अकेले. मतलब पेरेंट्स के साथ किया था, अकेले नहीं किया था कभी. मुझे ट्रेन से डर लगता था कि मैं किसी गलत स्टेशन पे ना उतर जाऊं. So there was something जो मुझे बहुत लगता था कि हाँ यार, मतलब कैसे करेंगे मैनेज इन चीजों को. But yes, there was support of my father. उन्होंने कभी मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मैं अकेली यहाँ रह रही थी, या उन्होंने कभी मुझे ये नहीं फील होने दिया कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं कैसे जाऊंगी, मैं कैसे करूंगी. He used to say हाँ चले जाओ, सुबह निकल जाना, इस वाली बस से चले जाना, उससे चले जाना. So एक जो कॉन्फिडेंस उन्होंने हमें देना स्टार्ट किया ना, हमें कभी फील नहीं हुआ कि हम किसी एक ऐसी सिटी में जा रहे हैं जो बहुत बड़ी सिटी है. दिल्ली, अगर अपने आप में लोग जब यूपी से दिल्ली आते हैं तो एक अपने आप में एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के अंदर फील होता है. एंड टिल 2000 मतलब ऑलमोस्ट 16 years एज तक I was a person जिसको बहुत शाय था, बात भी नहीं करने की आदत थी. बट दिल्ली सब सिखाती है. अगेन आप जैसे जैसे आप मार्केट में निकलते हो, आप जैसे जैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, then over a period I found कि yes, there is a huge change in my personality. Like फ्लो में आने की देर होती है बस. फिर आप बात करना जब स्टार्ट करते हो तो फिर आप कोई भी टॉपिक छोड़ते नहीं हो कि आप किस टॉपिक पे बात नहीं करो. So I mean as a person there is a huge change. एंड एक छोटी सी जगह से आकर जब आप दिल्ली में अपना एक होता है ना जगह बनाते हो, एंड आप अपना सोलो जब आप चीजों को खेलना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है कि यस, देयर इज अ ह्यूज चेंज. डेफिनेटली. यस, that is really a like different kind of experience, exposure when you come from a small town and like get into all the activities of a like big town. Entirely a new thing. Exactly. And that too around I mean around 20 years I've already spent in Delhi. So मुझे नहीं याद मैं अलीगढ़ में कैसी हुआ करती थी, but हाँ yes. But yes, हाँ I know कि I mean it's been a long time. Right. Things have really changed. Great. Yep. So if I talk about like kind of support you have in your life, so who are the people who supported you the most in your journey? I'm lucky in that way, and initially I got support of my father. Right. कई बार सपोर्ट आपके ये भी होते हैं कि आपको कोई रोक नहीं रहा है.
आप जो कर रहे हो आपके साथ आगे आपको पुश कर रहे हैं, हाँ आप करो, आप कर सकते हो। हाँ, काइंड ऑफ एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन। एग्जैक्टली। तो हमेशा सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई साथ में उंगली पकड़ के चल रहा है तभी आपके साथ चल रहा है, कई बार आपको पुश करने वाले भी आपके सपोर्टर्स होते हैं। सो इनिशियली ही वाज माय सपोर्टर, देन आफ्टर व्हेन आई केम इन दिल्ली, देन दैट टाइम माय नानी वाज माय सपोर्टर। ग्रेट। शी वाज अ पर्सन जिसको नॉलेज नहीं थी, लेकिन शी वाज लाइक खाली नहीं बैठना है, कुछ करना है। हाँ, राइट। दैट वाज अ पुश फ्रॉम हर साइड, सो आई रियली वांट टू थैंक हर कि उन्होंने मुझे पुश किया मेरी लाइफ में। Then after my marriage, my husband and my father-in-law, they both are like, मतलब कभी रोका नहीं कुछ करने के लिए। Right. उन्हें पता है ये करना। So doing that. So I'm thankful to each and every person in my life जिसने मुझे कभी रोका नहीं। That's really wonderful. Like stopping is not the support. It's like stopping you from something is a thing which is a barrier kind of a thing. So it is really important that anybody and everybody in your life should support you in a way that they help you to become better in terms of your confidence, knowledge, experience, maybe trying something new for the first time. This is really important. And family, friends, they are the best people who support you in that case. Exactly. And sometimes क्या होता है ना Mr. Daya कि मतलब I meant to say कि like आप जब कोई चीज करते हो ना तो न रोकने से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आपने जो बोला and they said हाँ तू कर लेके। Right. So वो भी एक सपोर्ट होता है कि आपके अंदर कोई बिलीव दिखा। Trust and belief. Yes. Yes. Wonderful. So now if I talk about the inspiration and motivation in life, who are the people or what are the things you get inspired from or motivated from? Inspire की बात करती हूँ तो my mom is my big inspiration. And अगर हम बात करते हैं और अगर हम बात जाते हैं तो हमारे लाइफ में हम अपनी लाइफ में हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर किसी से, चाहे वो हमारे हमसे बड़े हों चाहे वो हमसे छोटे हों। और बस सीखना तो जिंदगी है वैसे, मतलब आप हर दिन कुछ सीखते हो, हर पल कुछ सीखते हो। एंड दैट्स हाउ वी टेक इट। एंड now as an artist also, I mean every day you learn something new and that is plus on thing with you. Right. So I mean this is it. I mean आप हर चीज से सीखते हो। आपका नेचर आपको बहुत कुछ सिखाती है, आपके आसपास नेचर आपके, I mean there is so much to learn. So definitely learning is a process. I mean you learn every day. Correct. That is really important. Like you have so many things around, people around, so you can get inspiration, motivation from anywhere. Yeah, right. I mean, so आपको बस आँख खोल के देखने की जरूरत होती है कि आप कहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो। True. Well, I want to share. I have a pet at my home, and मुझे उससे भी इतनी इंस्पिरेशन मिलती है ना कई बार देख करके कि कितना सेल्फलेसली वो हमसे प्यार कर रहा है। एंड Definitely. एंड उसको कुछ नहीं चाहिए हमसे, बस वो खुश है हमको देखकर। हाँ. So like that, he's also an inspiration to me. Yes, true. So if I talk about success, as in like what do you think, what is your take on success? How does it look like to you? Success is something, मेरे ख्याल सक्सेस का कोई शक्ल नहीं होती है, कोई एक मतलब आई नो कि उसको हमने कुछ वर्ड्स में हमने उसको पिरो दिया है कि SSU I mean होता है ना सक्सेस ESS, हमने उसको स्पेलिंग दे दिया है। लेकिन सक्सेस आप हर स्टेप चढ़ते हो वो सक्सेस होती है। राइट। एवरी डे आप जब एक स्टेप आगे बढ़ते हो एक सक्सेस होती है। आपकी लर्निंग आपकी सक्सेस की तरफ ही होती है। करेक्ट। इट इज यू, जो आप अपने दिमाग में इस चीज को अलग अलग एंगल से आप उसको चेंज करते हो, आप अलग अलग एंगल से उसको सोचते हो। लेकिन शायद मैं सोचूं कि मैं आज से 20 साल पहले जब मैं दिल्ली आई थी तो मैं क्या थी, और मैं आज सोचूं तो मैं क्या हूं, तो मुझे लगता है कि नहीं, इट इज अ सक्सेस। राइट। हम हमेशा
पीछे वाले स्टेप से जब आगे वाले स्टेप को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमने सक्सेस किया है। और बाकी तो सक्सेस के अलग अलग नाम है, हर किसी के लिए अलग अलग नाम है, बट मेरे लिए सक्सेस का मतलब डेली आगे बढ़ना है। Correct. And that is really important, that you are moving ahead is a great success altogether. Yeah. Definitely, wonderful thought. So now we are moving on to the last question. Any message, advice you would like to make to our audience? आपकी ऑडियंस के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं पता मैं आपके शो के तक कितना जस्टिफाई कर पाई हूँ, बट लेकिन हाँ, आप जिस तरह से आप अपने इस पूरे प्रोग्राम को आप चला रहे हैं, जिस तरह से मैंने देखा आपने कुछ इंटरव्यूज और भी आपने जो आपने लिए हैं पीछे, इट इज़ अ गुड थॉट। समटाइम्स हमें समझ नहीं आता है कि हम कहाँ से चीज़ें शुरू करें। लोगों की लाइफ से ही कई बार कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो हमारी लाइफ में जब हमें लगता है कि हाँ, हमारी स्टोरी इसकी स्टोरी से मिलती है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हर स्टोरी में कुछ ना कुछ छुपा होता है। हो सकता है मेरी स्टोरी में भी किसी के लिए कुछ छुपा हो, तो दैट वे आई एम रियली थैंकफुल कि पता नहीं मैं अपने टूटे फूटे शब्दों में कितना इस चीज़ को बयां कर पाई हूँ, बट यस, हमें आगे बढ़ते रहने के लिए जो स्टोरीज चाहिए वो दया जी आपको दे रहे हैं और सबको मिल रही है, तो लोगों को देखना चाहिए एंड समझना चाहिए कि अब जो भी टाइम आपके शोज का है, पीपल शुड वॉच दैट एंड पीपल शुड नो कि अलग अलग फील्ड के लोग कैसे कैसे अपने अपने फील्ड्स में आगे बढ़े, क्योंकि आपने जिस तरह से आपने जो एक प्रोग्राम पूरा जो बनाया है उसके अंदर काफी सारी चीजें आपने ऑलरेडी सम अप की हुई हैं, राइट। तो वो काफी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि होता ना कि आप कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं, तो आप देखिए सेशन करके। Correct. I'm trying to put everything in a simplest of its form so that people can relate to it. And most importantly, there are many misconceptions related to some of the things which I have included as a questions to the interviewee, so that people can understand the implication of these things. Like some people think that money is the ultimate success, something otherwise. So it is entirely a different thing altogether. People have different meaning to it. Like for me, if I say I like this car, and if I talk about you must be liking some other car. So we don't have a similarity in those two in a smaller right. That is like car which we use on a daily basis to commute. And similarly, if we talk about other person, he or she may be having like a preference a different concept, different car altogether, model, price, color, so many things. So it is really important, like you understand your choices in a right way, what you want to do in your life in a right approachable way, what can be achieved and what cannot be. And if you think you cannot achieve it, definitely you cannot. And if you think you can achieve it, you definitely can. Because completely you are the person who is like pushing yourself or stopping yourself. So that is really that is why what I'm trying to convey through wonderful people I'm getting here on my platform, and you have shared your story. It is again an inspiration for many people who are coming from a small town for a career, maybe for education, and get into their life, do so many things, and ultimately get into a hobby, from a hobby to a profession, and they really love the kind of thing they are doing. That is really wonderful. Exactly. I really like the discussion we had today, and I must say it was wonderful and amazing discussion we had, and the kind of knowledge sharing you have done with us about calligraphy is not I can say it is not unknown, but it is unknown to many people. Most of the people are not aware of what exactly it is. It is restricted to some audiences, like some specific set of people who are artists, writers, authors, speakers, maybe some of them, and who are doing artistic work, designing work. They are aware of. Most people are not. So my thought is to create an awareness about calligraphy
how this can be used in their daily life, so that people can start using it as an Right. like writing, maybe a script, or maybe like as an hobby they can start it, and Right. probably they can get into a profession. So this is True. really wonderful, and I really enjoyed our conversation. Looking forward to hear from you soon again. Thank you so much, Raghunita, for your Thank you. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. And thank you so much, everyone who's watching it. Thank you. sure. Also, I would share your social media and website so that people can be in touch with you, take your Right. help, guidance wherever they feel like. Guys, don't forget to check that out too. Thank you so very much, everyone, for watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of information and enjoyed watching it. Don't forget to like, share, and subscribe. Have a good time. Thank you, and bye bye. Thank you so much. Take care. Bye. Good night.